अगर आप भी सेल्स में रिजेक्शन पा रहे हो, अगर आपको भी दिक्कत आ रहा है सेल्स करने में, अगर आपको भी ये क्वेश्चन आता है कि कस्टमर को पूछता है कि आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी महंगा है, आपको कई भी तरीका का जो सेल्स को लेके दिक्कत आ रहा है, तो दिस वीडियो कुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इन दिस वीडियो अगर आप देख लोगे टिल दी एंड, आई वुड थिंक कि आपको सेल्स के बारे में एक प्रोसेस पता चल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल द क्लाइंट ऑब्जेक्शंस, या जो भी आपका पार्टी है उसका आप ऑब्जेक्शन को अच्छा से हैंडल कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू डू वेल इन योर सेल्स। Disclaimer, I am not a sales expert, but whatever I have learned from my past, okay, I have handled my father's business for 2.5 years in CA also. I have seen in the articles how the principal used to sell to the client. I have worked in the, I am a chartered accountant, 4 years of experience. So I have seen people how they are selling also. So from all those experiences, I have made this video. So I hope you will really like the content, and if you like it, do like and subscribe the channel. We have also created content on interview for commerce job seekers and a lot of other content. So I would be really grateful if you watch my other videos as well. So without wasting your time, let's get into the main content, and the video will be extremely short so that we raise only the important points and solutions to it. Okay. So even it has happened with me when I was selling in my early ages, when I was handling my father's business. So when I was selling also, so I used to face a lot of rejections, and normally when we face rejections, so we feel disappointed with it. Okay. So I used to watch my father also observe very closely. So I used to ask him that how you are able to generate more leads, okay, on a consistent basis, and I am not able to do that, okay, although I am putting a lot of energy to do the same. So what is the thing that you are doing differently from me? So he said me two things. First thing is that I talk to customers not with the intention of selling directly, but I am talking to customers with the intention of understanding their problems, understanding their expectations, and trying to meet those problems and expectations in the most efficient manner. And even if they are not selling, they are not directly, I have that much of confidence in myself that if they will not purchase the product today, so they will purchase that product later on. So I am not in a hurry to sell my product. That really helps. This is the problem with many people, especially in the youth we have, that we are in the urgency mode to sell a product. हम लोग हमेशा वो urgency में रहते हैं कि we have to sell that product to the customers. Now the customer will not purchase your product even for a single rupee if they don't know about you, because customers product नहीं खरीदते हैं. Customers जब तक आप पे विश्वास नहीं करेंगे, without they believe in you, they will not buy your product. So it's very important that they trust you and more than the product. If they trust you, then there is a high chances that they will buy the product. Okay, so there is some 10 pointers which I have noted down. So this can really help when you are preparing for the sales. Okay, the first thing is that when you are selling to somebody, so that customer जब वो आएगा आपके पास, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका नीड क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पेन पॉइंट्स क्या है वो कस्टमर का. तो अंडरस्टैंड दिस नीड, रिक्वायरमेंट, द पेन पॉइंट ऑफ द टारगेट कस्टमर. यू शुड बी वेरी गुड विद दिस, कि आपको उसको समझना है कि इसको क्या चाहिए. रादर देन ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, योर कोर्स, योर सर्विस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या चाहिए. तो उनको अगर वो कोई भी पोजीशन में आपको अगर पूछ रहा भी है, फॉर एग्जांपल ही इज ट्राइंग टू, मतलब कुछ भी आपको पूछ रहा है, तो उनको पहले एक स्पेस में लाने का कोशिश करिए जहां पर वो आपका बात को समझ सके अच्छा से. सपोज आपको फोन में बात कर रहा है तो उनको जूम कॉल में लाइए. अगर वो आपका सपोज एक दुकान है, तो अगर वो दुकान का बाहर से आपसे बात करने का कोशिश कर रहा है, या कोई सामान का दाम पूछ रहा है या प्राइस पूछ रहा है, तो उनको आप अंदर में लाने की कोशिश करें, उनको इधर बिठाइए. दिस वाज द थिंग टैक्टिक दैट माय फादर आल्सो यूज्ड टू अप्लाई. दैट अगर वो बाहर से बात कर रहा है तो उनको बोलिए आइए, ये बैठिए, पहले बैठिए तो सही. तो ट्राई टू मेक श्योर कि वो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए, तब उसके बाद उनसे आराम से उनसे बात करिए. तो मेक श्योर कि आप जब कॉन्वर्सेशन करोगे 70% टाइम आप कोशिश करिए उसको क्या चाहिए, उसके बाद सुन. बी अ वेरी गुड लिसनर. आप उसको सवाल वैसा सारे पूछिए. ट्राई टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू दैट पर्सन कि वहाँ पर में आप उनका प्रॉब्लम को सुन और कोशिश कर रहे हैं समझने का. जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो डॉक्टर आपका बीमारी पूछने का कोशिश करता है कि आपको क्या बीमारी हुआ है, कब से हो रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रहा है. तो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, देन ओनली इज गिविंग यू मेडिसिन. वो कभी भी आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डायरेक्टली मेडिसिन आपको नहीं देगा, फिर आपका बीमारी के बारे में पूछेगा, जाने का कब से हो रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल ऑल्सो. आपको उसका बीमारी के बारे में जानना है, उसका नीड, रिक्वायरमेंट, पेन पॉइंट्स के बारे में क्लियरली आपको पता होना चाहिए. विदाउट विच अगर आपने डायरेक्टली आप उसको बेचने का कोशिश करोगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज दैट आप प्रोडक्ट वो सेल करो जो आप खुद भी यूज करते हो कहीं ना कहीं. ओके, डोंट ट्राई टू सेल एवरीथिंग. डोंट बी इन दैट पोजीशन कि यू हैव टू सेल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
द ब्रांड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल। आपका पर्सनल ब्रांड ज़्यादा जरूरी है सेल से ज़्यादा। सेल से आपको पैसा मिलेगा बट ब्रांड से आपको इज्जत मिलेगा। तो आपको वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचना है जो आप खुद भी यूज़ नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल माई फादर यूज्ड टू सेल समथिंग, सपोज वी हैड अ household item product, okay, we used to sell a cloth clip or a cloth brush or a wiper or a bucket, तो we used to tell that person ये हम भी यूज करते हैं अपना घर में, मेरा पड़ोसी भी यूज कर रहा है यही प्रोडक्ट और बहुत जन हम लोग का ये प्रोडक्ट यूज किया, उन लोग का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आई हैव सीन हिम कि वो कभी भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचने का कोशिश नहीं करते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर को आप 2 पैसा बेसी भी ले लोगे तो उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा, पर अगर आप प्रोडक्ट खराब दे दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, देयर इज अ हाई चांसेस वो सेकंड टाइम आपका दुकान में आए भी नहीं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो वो आपने ट्राई एंड टेस्टेड किया है, देन ओनली यू आर रिकमेंडिंग टू दैट पर्सन। इवन इन अफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक मनी थ्रू कमीशंस ऑल्सो मेक श्योर द प्रोडक्ट यू आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग दैट। अदरवाइज क्या होगा, आपका ब्रांड खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक बट डोंट मेक दिस मिस्टेक इंटेंशनली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंटेंशनली कोई मिस्टेक मत करिएगा इस तरीका का जस्ट फॉर अट्रैक्टिंग हायर सेल्स और कमीशन। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें आपको सीखना चाहिए, जो आई विल टेल यू, इज दैट नेवर टॉक ओनली अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, बट आपको टॉक करना है वैसे ऐसा पॉइंट्स के बारे में विच दे आर इंटरेस्टेड नॉट इन सेलिंग बट इन बिल्डिंग द रिलेशंस। हमेशा बोलने का मतलब ये है कि यू जस्ट थर्ड पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट जस्ट डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ओनली और सर्विस। आप कोशिश करिए एक तो उनसे बात इनफॉर्मल वे में भी होने का कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल दैट कस्टमर ऑलरेडी नोज यू, इवन इफ इट डज नॉट नो यू, तो आप कोशिश करिए इनफॉर्मल रिलेशन भी बिल्ड करने का। इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड करने का बहुत अच्छा टेक्निक ये है, यू कैन ट्राई कि आपको पूछ सकते हो आप कहाँ से आए हो और आप क्या करते हो, ओके आपका बच्चा कहाँ पर, तो आप ट्राई टू थोड़ा बहुत इनफॉर्मल रिलेशन भी बिल्ड करने का कोशिश करिए, दैट विल रियली हेल्प। ओके हम भी यहाँ से आए, कॉमन ग्राउंड मिलाने का, ओके आप भी यहाँ से हो मैं भी यहाँ से हूँ, और ये कॉलेज से आप पढ़े हम भी यही कॉलेज से, ओके लैंग्वेज या रिलेशन या कुछ कास्ट या रिलेशन कुछ ऐसे करके मतलब कॉमन ग्राउंड बनाने का कोशिश करिए, जिससे उसको क्या होगा अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं सीए हूँ तो मैं अगर कोई कोर्स बेच रहा हूँ सीए को, ओके मैं भी सीए हूँ, आप भी सीए हो, आप सीए फ्रेशर हो और मैं भी सीए फ्रेशर था एक समय, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक इन दिस फैशन, इससे क्या हो रहा है उसको पता वो अपना ही आदमी, मैं भी कलकत्ता से ही हूँ, आप भी कोलकाता से हो, कहाँ से रहते हो, मैं तो इधर ही हूँ। तो इससे क्या होता है आप ना उसको एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब आप कॉमन ग्राउंड कुछ खोजोगे, हमेशा कॉमन ग्राउंड खोजने का कोशिश करोगे तो आपका सेल बहुत अच्छा तरीके से हो पाएगा। जब कॉमन ग्राउंड खोजने का कोशिश करोगे, हमेशा कॉमन ग्राउंड खोजने का कोशिश करेगा, तो एक गलती मत करिएगा, आप एक बार कॉमन ग्राउंड खोज लो फिर उसको ज्यादा लंबा मत टानिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका कजन का फ्रेंड या भाई है, फिर उसको अपना ज्यादा उसके अंदर में रिलेशन के अंदर मत घुस जाइएगा, वो गलती हो जाता है। आप ज्यादा अगर इफ यू आर ट्राइंग टू मतलब I want to say once you have the common ground, you have got like one common ground, you have got this in your relation or something like that, then just don't go deep into that topic. You just touch the topic and this is called intelligence. ये intelligence you will learn from experience only, because अगर आप common ground में ज़्यादा घुस जाओगे then he will take you for granted also most of the time. So don't do that, okay? So you have to be very specific to the point, at the same time आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करना है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, I hope, okay? And I talked about the fourth point, okay? The fifth point is reaching out to them. The fifth point is reaching out to them, building relations with them. आप हमेशा कोशिश करिए उनको, अगर सपोज वो आपका प्रोडक्ट नहीं भी लेते हैं, सपोज ने आपका प्रोडक्ट के बारे में पूरा पूछ लिया, आपका सर्विस के बारे में पूछ लिया, फिर बोलते हैं अभी तो मेरे को नहीं चाहिए। नॉर्मली कस्टमर्स आपको 50% कस्टमर यही बोलेगा कि अभी तो मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट 15 दिन बाद चाहिए। बोलेगा आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर अभी मेरा ये प्रॉब्लम है, तो कस्टमर हमेशा ये बोल के निकलने का कोशिश करेगा। तो या एक तरीका है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अर्जेंसी क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो कि हम लोग एक लिमिटेड ऑफर ये टाइम तक रखे हैं, तो कोशिश करेगा ये लिमिटेड टाइम तक आप कंप्लीट कर दो वो चीज़ को। पर ज़्यादा अर्जेंसी मत करिएगा, अर्जेंसी ज़्यादा करोगे तो ऐसा लगेगा आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, पर ज़्यादा अर्जेंसी भी नहीं, पर उनको ऐसे चीज़ रखने का कोशिश करेगा, उनको ऐसे दिखाएगा कि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे, टाइम इज मनी, तो ऐसे तरीके से बोलने का कोशिश करेगा। तो दैट इज द वे कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे करके या आप अर्जेंसी इन सेल्स दिखा सकते हैं, कुछ डिस्काउंट रख सकते हो, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग रखे हैं, तो दैट कैन हेल्प यू। अदर देन दैट हमेशा कोशिश करिए अपना विजिटिंग कार्ड या फोन नंबर उनको देने का। ऑलवेज मेक श्योर कि अपना विजिटिंग कार्ड या कुछ फोन नंबर उनको आप दे दोगे जब वो जा रहे हैं आपका दुकान से या आपसे कॉन्वर्सेशन में करके, जब वो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट अ प्रोडक्ट। पर एक बार आपको कस्टमर समझ भी चाहता है ना अपना प्रोडक्ट के बारे में, इवन इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट अ प्रोडक्ट, उसके बाद भी व्हाट हैपेंस ना, ही विल डू हिज ओन रिसर्च आल्सो, बिकॉज उनको फिर भी अपना रिसर्च करना है आपके बारे में। तो गिव हिम सम टाइम, उनको एक पर्सनल स्पेस दीजिए, एक टाइम दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं आपने हमारे प्रोडक्ट में जाना, पर जरूर हमारे दुकान में आइएगा, जरूर मिलते रहिएगा। तो मेक श्योर कि आपको ये करना है, तो उनको विजिटिंग कार्ड या कुछ दे दीजिएगा, तो हमेशा टच में रहिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द 6 नंबर पॉइंट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। कम से कम एक सेल में 3 टाइम आपको फॉलो करना पड़ता है, पर फॉलो करने का तरीका है, आप फॉलो अप आफ्टर अ वीक कर सकते हो, आफ्टर 2 वीक्स कर सकते हो, या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करिए कि आप उनको दिखाई दे
पर आप उनको फॉलोअप भी नहीं कर रहे हो, पर उसको आपको दिखाई दे, मतलब आप आपका सर्विस उसको दिखाई दे, आपका रिजल्ट आपको दिखाई दे, तो ऑलवेज बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट पर्सन। बट या ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो देन दैट पर्सन माइट फॉरगेट यू। दिस आल्सो हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो वो जन इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाता है पर फॉलो अप नहीं करता है एचआर को, और कितना बार होता है कि व्हेन दैट पर्सन इज नॉट फॉलोइंग अप विद एचआर, तो दैट एचआर आल्सो फॉरगेट्स हिम, और उनका वो इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी ही इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, बट या फॉलो अप इन अ वेरी क्लेवर मैनर। ज्यादा फॉलो अप करने से भी प्रॉब्लम है, कमती करने से भूल जाएगा, तो यू हैव टू नो हाउ टू यू हैव टू डू द फॉलो अप प्रोसेस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल बी सम ऑब्जेक्शंस। अगर वो कस्टमर अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्वेरीज आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है, देन इट मींस वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो आपका प्रोडक्ट को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है। वो कस्टमर बेटर है जो बोलता है कि आपका प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, मेरा बजट नहीं है, ये नहीं है। इफ इज सेइंग दैट योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और समथिंग लाइक दैट, इट इज गुड फॉर यू, एटलीस्ट इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। वो कस्टमर थोड़ा बैड हो सकता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूर आएगा। इसका मतलब वो आपसे निकलने का कोशिश कर रहा है, रिलेशन खराब नहीं करना चाहता है, पर वो शायद आपसे भी इसको खरीदने का मन नहीं है, तो वैसे बोल के निकलने का कोशिश कर रहा है। तो इफ समबडी इज सेइंग यू कि योर प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश कर रहे हो, दैट प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, तो द बेस्ट वे टू हैंडल दैट इज यू हैव टू शो दैट टू दैट पर्सन द वैल्यू ऑफ द सर्विस दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। तो हमेशा कोशिश करिए उसको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाने का कोशिश करिएगा। आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेचने का कोशिश कर रहे हो, उनको फियर भी दिखाने का कोशिश करेगा। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लॉस हो रहा है, तो ट्राई टू शो इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। हमेशा ये कोशिश मत करिएगा कि वो बोलेंगे कि आपका कॉम्पिटिटर इतना में दे रहा है, आप इतना में दे रहे हो, तो कॉम्पिटिटर को नीचे दिलाने का कोशिश मत करेगा, बट अपना ही प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू दिखाने का कोशिश करेगा कि ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज यू विल गेट फ्रॉम अस, ये आपका एक्सपेक्टेशन हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द 2 points are left. Another important point I think is the customer is already convinced with you, then don't try to over convince him. For example, उसको आपके बारे में ऑलरेडी पता है, he already knows about you everything. मे बी उसको दूसरा दुकानदार से पता चल गया होगा, मे बी अगर आप सर्विस लाइन में हो, आपको कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देख लिया हो, तो इज ऑलरेडी कन्विंस्ड विथ यू। वो आप बात करते करते आपको समझ में आ जाएगा, उनसे बात करो कि ओके आप मेरा कंटेंट पढ़ते हो, आपके बारे में बहुत सुना है। तो अगर वो आपके बारे में ऑलरेडी बहुत सुन के रखा है, आपके बारे में जानता है बहुत कुछ, तो मतलब ऑलरेडी कन्विंस है 50%, तो आपको 50% ही और कन्विंस करना है। अब आप ज़्यादा 100-200% अगर उसको कन्विंस करने में लग जाओगे, तो वहाँ पर उसको लगेगा कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर उसको लगेगा ये बात क्या आपका ज़्यादा गरज है, देन वो आपका शायद नहीं ले। तो मेक श्योर अगर वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, लग रहा है बात करके कि वो ऑलरेडी कन्विंस है, तो ओवर कन्विंस करने का गलती मत करिएगा। तो ये गलती मैंने भी किया बहुत बार, आई हैव डन इन द पास्ट। तो मेरे को पता है कितना आदमी को कन्विंस करना है। इफ द पर्सन इज टोटली न्यू टू यू, तो उसको एक टाइम दीजिए आपको समझने के लिए। देखिए 2 तरीका होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप यहाँ तक आपका अगर वीडियो को देखिए और अच्छा लगा है, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आई हैव सीन द वीडियो टिल द एंड। ओके, अगर वो देखिए 2 चीज होता है, इफ द पर्सन नोज यू फ्रॉम बिफोर एंड, that means he already knows about your work which you are doing, he is 50% convinced about you, तो मतलब आपको 50% और करना है। if the person does not know anything about you but किसी से सुन के आया, इसमें इसका मतलब है उसको आपको टाइम देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो you have to give to that person time। तो उसको दिखा सकते हो आप, ये मेरा प्रोडक्ट है, आप डेमो ले लीजिए, कुछ डेमो प्रोडक्ट उनको दे दीजिए, कुछ फ्री सर्विस दे दीजिए, तो उसको टाइम दीजिए आपके बारे में समझने का, विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। तो ये चीज़ है, अर्जेंसी नहीं दिखाना है, बिकॉज देखिए सेल अपने को नहीं करना है, अपने को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, एक तो दुकान का ब्रांड बिल्ड करना है जो लॉन्ग टर्म में हम लोग को फायदा दे। ओके, एंड लास्ट थिंग आई थिंक जो वो सब गलती करते हैं वो है वो लोग ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। उल्टा आपको हमेशा अंडर प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है। और फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग समथिंग और बोले कि मेरे पास स्टूडेंट आके बोलता है कि मेरे आपसे मिलेगा तो गारंटी है कि हम पास हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा गारंटी मत दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कोई मेरे से आया आज करियर काउंसलिंग या जॉब मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए, और मेरे को बोलता है कि कंफर्म 100% गारंटी हम देता है कि आपको नौकरी लगा देगा, हम कभी भी ये सब नहीं देते हैं गारंटी। तो हाउ कैन आई गिव अ गारंटी टू दी अदर पर्सन? या कोई बोलता है कि ये प्रोडक्ट आपने बाई किया है, ये प्रोडक्ट 10 साल तक टिक जाएगा, इतना दिन का गारंटी है, इस तरीके का गारंटी मत दीजिए जो कि राइट ना हो। मतलब कि आपको भयंकर सर्विस मिलेगा, आपको 24/7 आप जब कॉल करो हम उठा लेंगे, ऐसा कुछ मत बोलिए जो कि मतलब वो रीजनेबल चीज नहीं है। अगर आप ओवर प्रॉमिस करोगे और खरीद भी लिया तो भी नुकसान है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगा आपसे ज्यादा। अगर नहीं भी खरीदा तब भी नुकसान है आपका, क्योंकि आप उसको क्योंकि आदमी को समझ में आ जाता है फेक रहा कब है और कब सही जेन्युइन चीज बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। ठीक है, तो आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स दैट यू नीड टू फॉलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग इसके ऊपर में और भी वीडियोस बनाएंगे कि हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्स दैट यू कैन अप्लाई। आप अपना कैसे क्रॉस सेलिंग ऑफ स्केलिंग बहुत तरीका का सेल्स कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, बड़ी लंबी है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी अदर वीडियोज भी आप जरूर देखना। थैंक यू सो मच।